ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ 8th ਸਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਵਲ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਟ ਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਰ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੇਕਨ 1 ਆਵਰ ਲੈਸ, ਤਾਂ ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਦਾ ਸੇਮ ਜਰਨੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਵਲ a train travel a distance by uniform speed is equal to कितनी है 360 किलोमीटर। लेट्स the speed of uniform is equal to x if the speed of train increased is equal to x plus 5 कर देती जाती है। टोटल डिस्टेंस covered by 360 if the train covered the distance by uniform speed, then it take time is equal to 360 by x, क्योंकि टाइम का जो फार्मूला होंदा है टाइम पता करन दा वो होंदा डिस्टेंस बाय स्पीड। ता इफ द ट्रेन स्पीड increased then it take time is equal to 360 by x plus 5। तो आप की है आप इन दोनों रकमों बराबर करके लिख लांगे 360 by x 360 by x plus 5 रकम के अनुसार वो की कहता है भी जेकर उसकी जी स्पीड है उसनू x प्लस 5 यानी कि 5 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दिता जाता है, तो वह मतलब कि 1 घंटा घट समा लैंदी है। इस जगह के उत्ते वह मान लो जो 5 घंटे लैंदी है तो इस जगह के उत्ते वह 6 आवर लैंदी है। तो आप की करांगे इहदे विच 1 आवर है जिहड़ा वह जोड़ देंगे। आपने को जिहड़ा रकम बनी स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी 360 बाई एक्स। आ जो रकम प्लस दी है ये इधर आ जाएगी, माइनस दी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। हुण आप इस रकम नूं अगों सॉल्व करांगे। ये रकम की बन जाएगी अपने को 360 बाई एक्स माइनस 360 x plus 5 is equal to 1।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ x ਤੇ ਆ x + 5 है जो इस दा एलसीएम लवांगे अपने कोले आ जाएगा x + 5। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਆ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x + 5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ x + 5 ਨੂੰ x + 5 ਤੇ x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x + 5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ x ਬਚ ਜਾਏਗਾ। जो x बच जाएगा ये ऊपर 360 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ = 1 ਆ ਗਿਆ 1/1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 360 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 360x 360 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1800। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਕਮ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ बाय हो जाएगा बेटे एनु अंदर मल्टीप्लाई किया ये बन गया x² एनु अंदर मल्टीप्लाई किया ये बन गया 5x = 1/1। ਹੁਣ ਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आपने को जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी 1800/x² + 5x = 1/1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने को स्टेटमेंट बनेगी x² + 5x = 1800 x² + 5x आ जड़ा 1800 अपने को प्लस का जो इधरले पासे करांगे तो अपने को आ जाएगा माइनस का = 0। आह अपने को स्टेटमेंट आ जाती है। इस स्टेटमेंट ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर ਦੇ ਨਾਲ यानी कि ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੂਲ यानी कि x² + 5x - 1800 = 0। a बराबर आ गया 1 बेटे b बराबर आ गया 5 c बराबर आ गया माइनस का 1800 d बराबर आ गया अपने को b² - 4ac b अपने को हैगा बेटे 5d² - 4a दी वैल्यू 1 आ गया माइनस 1800 आ गया। जब 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 25 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ प्लस हो गया 18 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 72 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 72 + 5 यानी कि ਆਪਾਂ 7200 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 जोड़ ਦਾਂਗੇ 5 ऐड करने हैं 227। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਗਈ अल्फा बनावांगे -b + -√d/2a ये बन गया माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है अपने को 7225/2 a की वैल्यू अपने को कितनी है 1। ठीक है तो इतने मैं तुहानू इहदा वर्गमूल कढ़ना दस दांगा यानी कि स्क्वायर रूट असीं किवें पता करना हुंदा है। स्क्वायर रूट असीं इस तरीके नाल पता करना हुंदा है दो दे फैक्टर लेने होंगे आपां ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛਿਕਮ 6 1 6 36 ਹੁੰਦਾ 7 1 7 49 ਹੁੰਦਾ 8 1 8 64 ਹੁੰਦਾ 9 1 9 81 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ 8 ਤੇ 8 1 8 64 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 8 ਬਣ ਗਿਆ 25 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 आ गया 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਕਮ ਹੀ 8 ਜੋੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਡ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 825 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ 85। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ -5 प्लस माइनस √7220 की वैल्यू कितनी आएगी 85 आएगी बाय 2। ठीक है तो इन्हों आप एक बार प्लस से लिखांगे प्लस एक बार माइनस से लिखांगे बाय 2 85 के विच 5 माइनस हो जाएगा 80 आएगा बाय 2 काट के आ गया 40 किलोमीटर प्लस माइनस 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 प्लस 85 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 प्लस हो जाएंगे 90 आएगा ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ माइनस ਦਾ 45 आ जाएगा। तो आह रकम है जी डिसक्वालीफाई होगी आ रकम क्वालीफाई होगी यानी कि जी ट्रेन है ट्रेन की यूनीफॉर्म स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर है। तो जेकर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तो हो जाएगा x + 5 सीगा तो अपने को कितना बन जाएगा 40 + 5 = 45। इस तरीके दे नाल यह सम जिहड़ा यह निकलना सीगा। हुण आपां चलदे हां अपने
नैक्सट सम दे वल। नैक्सट सम है जिहड़ा वो है 9th सम। इस सम दे विच कहंदा 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9/3/8 आवर्स। दो पानी दियां टोटियां हैगियां जी, ठीक है, ਉਹ एक टैंक हैगा, टैंक ਨੂੰ मतलब कि 9/3/8 आवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾ टैप्स ऑफ लार्जर डायमीटर, ਜਿਹੜੀ टैप्स लार्जर डायमीटर ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਸ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, टेक 10 आवर ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਮਾਲਰ वन। ਉਹ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟੂਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਟਸ ਦਾ smaller taps take time is equal to x किलोमीटर x आवर लेंदी है, ठीक है। larger taps take time is equal to वो 10 आवर घट लेंदी है, ठीक है। ते टोटल 2 taps fill the tank together। वो किन्ने आवर च भर दिंदी है? 9/3/8 आवर दे विच वो टैंक नूं फिल कर दिंदी है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ 9/3/8 ਆਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 9 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 72 ਆਏਗਾ। 72 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 75/8 ਆਵਰ। ਐਨੇ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੈਪਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ 1 ਆਵਰ ਦਾ smaller taps fill the tank। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲਰ ਟੈਪ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਗੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਈ x, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ टैंक इज इक्वल टू V। वॉल्यूम का मतलब होंगे समर्था, जो उसकी समर्था है मतलब कि टैंक दे विच कितना पानी पै सकता है। द लार्जर टैप्स टेक टाइम टू फिल द टैंक, ठीक है। वो कितने समय टैंक फिल करेगी, वो वॉल्यूम बाय x माइनस 10 आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਟੈਪਸ ਟੁਗੇਦਰ, 2 ਟੈਪਸ ਟੁਗੇਦਰ मतलब कि जो ਦੋਨੇ ਟੈਪਸ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7/8 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਦੋਨੇ ਟੈਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਗੀ, ਐਨੇ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ V/x ਪਲੱਸ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਈ x ਮਾਈਨਸ 10 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਈ 75/8। 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ V/x प्लस वॉल्यूम बाय x माइनस 10 इज इक्वल टू 8V/75। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ V ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। इस रकम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ अपने को बन गई आह रकम। आह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आप लिखांगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। आह जो x है तो x माइनस 1 है, एलसीएम लवेंगे x माइनस 10
इस रकम में जो इहदे नाल डिवाइड करांगे तो आ रकम कट्टी जाएगी, आ बच जाएगी, आ जो बच जाएगी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 10 बन जाएगा प्लस इस रकम में जो इहदे नाल डिवाइड किया तो आ कट्टिया गया, आ बच गया, जो बच गया ऊपर लेना मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 8/75। x ਤੇ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ जोड़ ਦਾਂਗੇ बेटे, ये बन जाएगा 2x माइनस 10 बाय x ਨੂੰ x ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया x ਦੀ स्क्वायर बन गया, x ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया ये बन गया 10x 8/75 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे x ਦੀ स्क्वायर माइनस 10x बन जाएगा बराबर 75, ये बन जाएगा बेटे 2x माइनस 10। 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे राजे 8x ਦੀ स्क्वायर बन जाएगा, 8 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 80x, 75 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 150x माइनस 75 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 750 बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटे 8x ਦੀ स्क्वायर माइनस 80x बन जाएगा प्लस ਦਾ राजे, जो इधरले पासे लेके आवांगे माइनस ਦਾ हो जाएगा, ये माइनस ਦਾ जो इधरले पासे लेके आवांगे प्लस का हो जाएगा। हुण की है ये अपने को बन गया बेटे 8x ਦੀ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन गया बेटे 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8 जोड़ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 23x बन जाएगा, यानी कि 230x बन जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। हुण अपने को आ गई आह स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट नूं आप लिखते हैं इस जगह पे 8x ਦੀ स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एंड विचों की है बेटे आप 2 एक बार कॉमन कटते हैं, ये बन गया 4x ਦੀ स्क्वायर माइनस 2 1 जा 1 2 हो गया, 2 1 जा 1 2 हो गया 15x प्लस 2 1 जा 3 60 हो गया, 2 1 जा 7 14 हो गया, 2 1 जा 5 10 हो गया इज इक्वल टू 0। तो इस रकम को सॉल्व करेंगे, a बराबर आ गया 4, b बराबर आ गया माइनस 115 ते c बराबर आ गया 375, d बराबर आ गया बेटे b ਦੀ स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हैगा अपने को माइनस 115 ਦੀ स्क्वायर माइनस 4 375। हुण की करांगे 115 ਨੂੰ 115 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 25 2 आ गया कैरी, 5 ਨੂੰ एक ना कितनी 5 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, ये बन गया 5 1 1, ये बन गया 5 1 1, ये बन गया 5 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ऐड किया 2 बन गया 5 5 10 11 ਤੇ 1 12 2 एक आया आंसर 1 1 2 2 ਤੇ 1 3 this one, तो अपने को कितना आ गया 13,225। हुण की है हुण आप इनू करांगे 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, आप करांगे 375 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ मल्टीप्लाई 6 5 30 0 3 आए आंसर 7 6 42 42 ਤੇ 3 45 5 4 आए आंसर 6 3 18 18 ਤੇ 4 22, ये बन गया 5 7 3, ये बन गया 0 5 5 10 0 एक आया आंसर 7 ते 2 9 ते 1 10 3 2 5 ते 1 6 6000 बन गया, ये मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा माइनस 6000। ये आप घटा देंगे तो ये आप घटा देंगे 225 का सीधा ही बच जाएगा अपने को 13 के विचों 6 निकलिया 7, तो पिछले सम वाली रकम आ गई अल्फा कटांगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट 7,225 टू एंड हो गया 4। तो आप अगो सॉल्व करते हैं सामने। उम्मीद करते हैं कि तुहानू मेरा यह पढ़ाने का तरीका वधिया लगेगा। जेकर तुहानू मेरा यह पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बन गया 115 प्लस माइनस एंड आप पिछले सम के कटिया 85 बनया सीगा, तो ये बन गया 8। इस रकम आप एक बार प्लस च लिख लाँगे बाई 8, एक बार माइनस लिख लाँगे 115 माइनस 85 बाई 8, ठीक है। तो हुण की है इहदे विच इहनूं 115 दे विच 85 जोड़ांगे अपने को आ जाएगा 200, इहनूं कट दांगे अपने को आ जाएगा 25।
ये कितना बन जाएगा, ये अपने को बनेगा 13/8 कट के आएगा अपने को 15/4। तो अपने को जी रकम है वो आ गई 25, यानी कि जी उनकी स्मॉलर टैप है वो 25 आवर लेगी, तो जी लार्जर टैप हैगी वो 25 - 10 = 15 आवर लेगी। ठीक है जी, इस तरीके के नाल यह सम है जिहड़ा यह निकलना सीगा। नैक्सट सम है अपने को 10, एन एक्सप्रैस ट्रेन टेक्स 1 आवर लैस दैन ए पैसेंजर ट्रेन। एक जी एक्सप्रैस तेज चलने वाली गड्डी हैगी वो पैसेंजर ट्रेन के नालों 1 घंटा घट समा लैंदी है टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर तो बेंगलोर के विचकार दूरी तय करने दे विच मैसूर टू बेंगलोर टोटल डिस्टेंस है जी वो इज इक्वल टू हैगी है 132। द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रैस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर। जेकर कहते कि तेज चलने वाली जी गड्डी हैगी है उसकी जी एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, दैन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन जी यात्री गड्डी है उस दे नालों फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो आप की करेंगे द एवरेज स्पीड द द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ा दी जाए, यानी कि x + 11 कर दी जाए। ठीक है, तो आप की लिखांगे द पैसेंजर ट्रेन टेक टाइम। पैसेंजर ट्रेन टेक कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है बेटे 132/x एक्सप्रेस ट्रेन टेक टाइम। एक्सप्रेस लेगी 132/x + 11। तो आप दोनों बराबर करके लिख लेने, इक्वल टू करके लिख लेने 132x + 11। तो वह की कहता है, वो कहता कि जी एक्सप्रैस ट्रेन है यानी कि आ एक्सप्रैस ट्रेन है ये मतलब कि पैसेंजर जी ट्रेन हैगी उस तो 1 घंटा घट समा लैंदी है, यानी कि ये घट लैंदी है, यानी कि ये जे 5 घंटे लैंदी है तो ये 6 आवर लैंदी है, जे 7 लैंदी है तो ये 8 लैंदी है। तो आप की करेंगे आप 1 आवर ऐड कर देंगे। हुण की करेंगे आप जी रकम है जो स्टेटमेंट है इनू आप इधर लेके आवांगे, माइनस की हो जाएगी x + 11 = 1 हो गया। एंड आप उस तरीके ही एलसीएम निकालेंगे, 11 हो गया। एन जो डिवाइड करेंगे आ कट्टा गया आ बच गया, जो बच गया ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे x + 11 माइनस एन जो डिवाइड करेंगे आ कट्टा गया आ बच गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 1/1 हो गया। जो आप मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 32x बन जाएगा। जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 1 2 इज इक्वल टू 22, 2 आ गया, 2 कैरी आ गया, 11 1 3 इज इक्वल टू 33 और 2 कैरी हो गया 35, 5 आ गया, 3 कैरी हो गया, 11 1 11 11 और 3 14 माइनस 132x बाई एनू अंदर मल्टीप्लाई किया x² हो गया, एनू अंदर मल्टीप्लाई किया 11x हो गया इज इक्वल टू 1/1 हो गया। तो स्टेटमेंट है जी कटी जाएगी। जो x² + 11 आप मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा x² 11x बराबर 1452, ये बन जाएगा x²
11 माइनस 1452 इज इक्वल टू 0 हुण की बन गया ए बराबर 1 बी बराबर 11 सी बराबर 1452 इज इक्वल टू 0 डी बराबर बन गया बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बन गया 11 का स्क्वायर माइनस 4 1 मल्टीप्लाई 1452 11 11 121 माइनस ये बन जाएगा इन्हों आप मल्टीप्लाई करांगे देखो किवें 21 माइनस 1452 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 दूनी 8 5 का 20 0 2 यहाँ से 24 की 16 17 ਤੇ 18 4 ਤੇ 1 5 n बन जाएगा ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऐड कर देंगे 9 बन जाएगा 2 बन जाएगा 9 5 दिस बन आ गया ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 20 ਆਪਾਂ ਹੁਣ अल्फा कटांगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है 11 माइनस दिस वन 2 1 आ गया माइनस 11 आ गया 5929 का आप स्क्वायर रूट कटांगे ये जाएगा 7 1 7 49 आ गया 10 बचे 29 7 7 7 मल्टीप्लाई करांगे दिस वन आ जाएगा साथ में बोले आ गया 77 बाय 2 ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ रकम आ गई ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ दो बारी लिख ਲਾਂਗੇ माइनस 11 प्लस 77 बाय 2 माइनस 11 माइनस 77 बाय 2 प्लस माइनस माइनस हो गया 66 बाय 2 33 आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 88 बन गया 2 माइनस द 44 आ गया दिस इज नॉट क्वालीफाई आ रकम है जी क्वालीफाई होगी यानी कि पैसेंजर ट्रेन है जी उसकी स्पीड कितनी है 33 किलोमीटर जी एक्सप्रैस ट्रेन कितनी होंगी होगी 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर ठीक है जी इस तरीके यह सम है जो बेटे यह निकलना सीगा हुण आप चलते हैं अपने नैक्सट सम के वाल उम्मीद करता कि तुहानू मेरा यह पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा हाँ जी आप करते हैं 11 सम लास्ट सम है जी ये अपना इस एक्सरसाइज का आपन कहता है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर कहता कि 2 स्क्वायर दिते गए हैं 2 स्क्वायरां दे जेड़ा एरिया का क्षेत्रफल जेड़ा एरिया का स्क्वायर है वो अपने कोले 468 मीटर है आप की करांगे आप लिखांगे लेट्स द एरिया of 1 square is equal to x second square is equal to y तो वो कहता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का जो एरिया होंगे एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होंगे वो कितना होंगे भुजा गुना भुजा यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड तो वो कहता है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y स्क्वायर x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को है 468 मीटर स्क्वायर। उस तो बाद कहता है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 25। हुण की है आप इत्थे लिखांगे द पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर ये होंगे बेटे 4 गुना साइड 4 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर ये होएगा 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 4 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 4y। वो की कहता इन्हों का जो डिफरेंस है वो 24 है तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4 आप कॉमन कट लाँगे x माइनस y इज इक्वल टू 6। आपने को बन गई सैकेंड इक्वेशन, आपने को बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो आप करेंगे इक्वेशन में इतने लिखांगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 468। सेकेंड इक्वेशन अपने को एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स इज इक्वल टू 6 आह माइनस है बेटे, माइनस जो इधरले पासे जाएगा प्लस बन जाएगा। अपने को एक्स की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई। आप लिखांगे फिल एक्स वैल्यू इनटू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन अपने को एक्स दी स्क्वायर प्लस वाई दी स्क्वायर प्लस 468 एक्स की जगह पे आप बेटे वैल्यू पुट कर देंगे प्लस वाई दी स्क्वायर प्लस सॉरी इतने इक्वल टू लगना है बराबर 468 एंड फार्मूला बन जाएगा ए दी स्क्वायर प्लस बी दा स्क्वायर प्लस 2ab वाई दी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये बन गया बेटे 6 दा स्क्वायर प्लस वाई दा स्क्वायर क्योंकि बी है 2 गुना 6 गुना वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये अपने को बन जाएगा 6 नु 6 ने मल्टीप्लाई किया 36 प्लस वाई दी स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई दी स्क्वायर इज इक्वल टू 468 बन गया। हम की करेंगे आ वाई तो वाई में आप ऐड कर देंगे ये बन जाएगा अपने को 2y दी स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 ये बन जाएगा अपने को 2y प्लस 12y प्लस माइनस माइनस 8 के विचों 6 सबट्रैक्ट होया 2 आ गया ये बन गया 46 46 के विचों 3 निकल गया 43। तो अपने को स्टेटमेंट बन जाती है। इस स्टेटमेंट को हम आप डिस्क्रिमिनेंट नाल हल करांगे। आप आह स्टेटमेंट है जी वो ऐसे लिखते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन ले लेंगे बेटे y दी स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 1 जा 2 4 आ गया 2 1 जा 1 6 इज इक्वल टू 0। a बराबर 1 आ गया b बराबर 6 आ गया c बराबर माइनस 216 d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ये बन गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 216 6 नु 6 ना मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 नु 6 ना मल्टीप्लाई करता 4 1 जा 6 24 4 आ गया 2 आ गया कैरी 4 1 जा 4 6 आ गया 4 नु 2 ना कितना 8 आ गया इन्हों आप ऐड कर देंगे ये बन जाएगा अपने को 900 डी बराबर अपने को कितना आ गया 900 आ गया। हुण आप इनका अल्फा बीटा निकाल लेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस बी की वैल्यू अपने को 6
प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आ गई 900 बाई 2, ए की वैल्यू अपने को 1 है, माइनस 6 प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30 बाई 2, ये बन गया माइनस 6 प्लस 30 बाई 2, ये बन गया माइनस 6 माइनस 30 बाई 2, ये बन गया 24 बाई 2 कट के 12 आ गया, माइनस 36 कट के माइनस द 18 आ गया, और डिस्क्वालीफाई हो गया, ये क्वालीफाई हो गया, यानी आ गई। तो अपने को जी इक्वेशन बनी सी वो की सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बनी सी, एक्स बराबर 6 प्लस वाई, तो एक्स का मुल 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। इस तरीके के बेटा यह सम निकलना सीगा। उम्मीद करता कि तुहानू मेरा यह पढ़ाने का तरीका वधिया लग्या होवेगा। जेकर तुहानू मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नैक्सट टाइम फिर मिलेंगे कुछ नवे सम लैके। आज लिए इन्ना ही। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय, सेफ होम, स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू, ओके, बाय।